record. Pir onjum ka che social ni wani pan me basa. Where is she? Wa alaikum assalam. Where are you? I can't see you. Minha Tabir इशरत निसा समझ बेके से करें इसमें नहीं इतने ही तो है महराजुद्दीन इस इसका कैमरा ऑफ आ रहा है okay here is Pir Anjum actually Nagawas Muslim Ate. Anyways, so we have to talk about the midpoint circle drawing algorithm. It is around about same but not basically we should have read first midpoint then Bressenham because Bressenham is a better algorithm than the midpoint circle drawing algorithm. Suhaib Mansoor has come up. Admit. Ubaid, Hina, and Suhaib Mansoor, try to open up your cameras. So in a midpoint circle drawing algorithm, what we do is basically we have seen that if we want to draw a circle and say this was a point, and if the point comes between these two pixels, that is between the center of the two pixels, because there is no gap between the pixels. Now, between the center of the two pixels, we could say, then is this distance smaller or is this distance smaller? Depending upon that, we either do this pixel or we do this pixel. Now, when we have an like an graph, we have the x-axis going on this way. This is 0, 1, 2, 3, and 4. And we have y going on this way, 1, 2, 3, and 4. Okay, y is going on this way and x is going on this way. So x is actually this axis is the x-axis, and this way we have the y-axis. The positive y is on the top, negative y is on the bottom, right? We know that. And when we start the pixel, we said we start from here. That means we have climbed this y-axis equivalent to the radius, whatever the radius is. Okay, but x-axis I am there only at 0. So that is why the start point of this was the 0 and r. That is x0 and Said Batura has come up. And r is my radius, that is the y, right? But when I move from this direction into this direction, the y decrements, because when I go here, the y is here 0. So I am going down, that means I am going down to the y-axis, this y-axis. So I'm decrementing y all the time, going here, that is 0. But x, I am moving x on the x direction. Every time I move on this arc, every time I increase my x, right? Okay, so all the time when I go from here to here, I am doing nothing but incrementing x. And should you decrement y or not, you take decision, because when your line comes like this, say what you are on the graph, say this is a graph paper, okay, you are here now, second point is here, there are the pixels like this all the time, okay, and when you are moving like this, okay, if your arc is moving like this, so because this is the y, you are decrementing y. But if you stay here and you stay on this pixel, the y of this pixel is same as that of this pixel. That means you are not enough. That means you are not decrementing y on this say this is p1 and this is p2. Okay, at p1 you are not decrementing y because y is same as what is the y of this. अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इस पॉइंट के लिए भी y 3 है, इस पॉइंट के लिए भी y कितना है 3, सेम जो यहाँ पर है, because y we see on this axis, जो ये वाली axis है, जो ये वाली axis है ना, but x we see on this axis. So अगर यहाँ पे x 0 था, यहाँ पे x कितना है 1, तो ये पॉइंट हो या p1 हो या p2 हो, दोनों के लिए x जो है अब 1 बन गया है, इंक्रीमेंट हो गया है ना. So x all the time becomes x is equal to x plus 1. But y, if you chose p1, y will stay as the y, your previous y tha, if it is y of I plus 1, that is whatever the y of I was, the previous I. Similarly, but if you chose the p2, okay, y of I plus 1 will become what? Y of I plus 1, because you increment that. Sorry, decrement that, not increment. Okay, here we decrement 1. Because if you chose this, you have to decrement y. So y अगर यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे 2 है, इसके लिए y कितना है?
अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, समझ आ रहा है? Are you getting my point? What I'm saying? Now, in the Brassenham was saying कि अगर आपको ये सिचुएशन है कि ये पिक्सल है और ये पिक्सल है, ये पिक्सल है, मैं बनाता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ये P1 है और ये P2 है। ब्रेसनम बोल रहा था कि which distance is smaller? Is delta this P1 smaller or delta P2 is smaller? अगर delta P2 smaller है, छोटा ये वाला है हिस्सा है, that means this is closer to the line. The line is closer to this pixel, so I should go for this pixel. That means at that case I should increment X and decrement Y. But if this pixel is closer, as here it is, it seems closer, then I should choose P1. When I choose P1, I increment X, but what will happen to the Y? Y will stay as Y, it will not change, है ना, जो भी दिखाया मैंने यहाँ पे कि इस पॉइंट पे Y इंक्रीमेंट नहीं होता है, डेक्रीमेंट नहीं होता, Y वही रहता है जो इधर था, क्योंकि Y की एक्सिस है ना ये, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा, ये पॉइंट लूंगा, ये पॉइंट लूंगा, ये पॉइंट लूंगा, इन सब का जो Y है वो सेम ही रहेगा ना। अगर Y3 है, इसका भी Y3 है, इसका भी Y3 है, इसका भी Y3 है, इसका भी Y3 है कि नहीं? लेकिन X पे इनका डिफरेंट है। X आप देखो, X यहाँ अगर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, तो इन सब पॉइंट्स का X इंक्रीमेंट डिफरेंट है, लेकिन Y क्या है? बिकॉज दे लाई ऑन अ सेम पॉइंट ऑन दिस Y एक्सिस। इसी तरीके से ये जो दो पॉइंट्स हैं इनका Y सेम ही रहेगा, Y को चेंज नहीं होगी, X चेंज होगा बिकॉज X मूव्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन। लेकिन जो ये वाला बंदा है इसके लिए क्या होगा बताओ? P2 के लिए क्या होगा? X इंक्रीमेंट होगा? स्पीक अप, क्या X इंक्रीमेंट होगा P2 के लिए? ओपन द माइक एंड टॉक। जो P2 Yes, है sir. क्या उसके लिए X इंक्रीमेंट होगा? नो सर X सेम रहेगा P2 के लिए, सर नहीं होगा इंक्रीमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे थे ना, आप इस पॉइंट पे थे। अब नेक्स्ट आप अगर ये पिक्सल बनाओगे, क्योंकि इसका X 0 था, इसका X कितना है? 1. X तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना ऑल द टाइम। क्या Y को क्या हो रहा है? P2 पे Y को क्या हो रहा है? सेम. कैसे डेक्रीमेंट होगा, डेक्रीमेंट होगा। ये यहाँ पे है, ये P2 यहाँ पे है। तो अगर मेरी एक्सिस ये है यहाँ पे ऐसे और आपकी आर्क जा रही है ऐसे, सो ये प्रीवियस वैल्यूज थे, ये नया है, ये P1 है, ये P2 है। जब आप P2 पे जाओगे Y तो इधर पहुंच गया ना, ये Y है। अगर इसका Y फॉर एग्जांपल 5 था, इसका क्या Y है? 4 कम है ना, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, तो इसका Y डेक्रीमेंट होगा, X क्या होगा? इंक्रीमेंट। इस P1 के लिए क्या होगा X? क्योंकि अगर यहाँ पे थे, यहाँ से अब आप यहाँ आ गए इस पॉइंट पे, आउटसाइड सर्कल X is called X plus 1। मैं आउटसाइड सर्कल की बात है, मैं P1 की बात कर रहा हूँ। सो वही सर, X of I plus 1। it will increment X. What will happen to the Y? सेम. Y will be same. Y will stay as whatever it is. So डिसीजन हमें लेना है कि मैं P1 लूंगा या P2 लूंगा। अगर मैंने P1 लिया, X को इंक्रीमेंट होगा और Y रहेगा सेम। अगर मैं P2 लूंगा तो X तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, लेकिन Y क्या होगा? डेक्रीमेंट। Y is Y minus 1। अब ब्रसन हम बोल रहा था कि ये कौन सी डिस्टेंस छोटी है, कौन जो पिक्सल है वो क्लोजर टू द लाइन है, क्लोजर टू द सर्कल आर्क है, ठीक है? आप वो ले लो, वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 हम देख रहे थे वो वगैरह, उसकी कौन छोटा, वो डेरिवेशन हम देखा। लेकिन मिड पॉइंट क्या कह रहा है? मिड पॉइंट कह रहा है कि ऐसे, कि अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है, आप इस पिक्सल और इस पिक्सल का मिड पॉइंट देखो कहीं पर, जो मिड पॉइंट होगा, फिर देखो कि मिड पॉइंट के हिसाब से ये लाइन किसके पास ज्यादा है, नजदीक है, मिड पॉइंट के हिसाब से। किस हिसाब से? यूजिंग द मिड पॉइंट, बिकॉज वी हैव अ मिड पॉइंट हियर बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द टू, and then we see as per the midpoint, okay, which it is closer to which pixel. Depending upon that, you either chose this or you chose this. Only difference is that, ठीक है? Only difference is कि midpoint के हिसाब से कौन नजदीक है। हमें करना तो वही है, सेम जो प्रश्न हमने किया,
लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग है कि अभी हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं दो पिक्सेल्स के दरमियान, ठीक है, और मिड पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं कौन नजदीक है इस लाइन के। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि जो मेरे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, व्हाट वाज द डिसीजन वेरिएबल ऑफ दिस, जो डिसीजन वेरिएबल हमारा था, ओके, डीवी ऑफ 0, हाँ आपके इसमें किसमें, ब्रेसन होल में डिसीजन वेरिएबल जो हमने डिराइव किया था वो क्या था? 3 minus 2r। यहाँ पे 5/4 माइनस आर है, और हम इसमें भी 5/4 जो है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है, इसके बदले हम 1 माइनस आर लेते हैं, दोनों चल सकते हैं। यू टेक 5/4 आर और 1 माइनस आर। दिस इज आवर डीवी ऑफ 0, दिस इज आवर डीवी ऑफ 0, that is decision variable 0. Okay, now what will be the, now we take decisions on इसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि क्या dv of 0 छोटा है या लेस देन 0 है या बड़ा है, उस हिसाब से हम काम करेंगे ना। सो व्हाट विल यू डू? सो उस इसके साथ क्या करेंगे बताओ? अगर dv है लेस देन 0 तो उसका मतलब है मुझे टॉप वाला पिक्सल लेना है, ठीक है। तो अगर मैं टॉप वाला पिक्सल लूंगा उस सूरत में क्या हो जाएगा बताए कोई? x क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। सो x ऑफ i प्लस 1, लेकिन नेक्स्ट i क्या बनेगा? हमें जो मेरा पुराना i था उसको प्लस 1 करूंगा। x ऑफ i प्लस 1 मींस नेक्स्ट x, यानी कि अगर ये मैं इसकी बात कर रहा था, से दिस वाज x ऑफ 0, क्योंकि पहला ही है ना ये, दिस इज x ऑफ 0, नाउ दिस इज द x ऑफ 1, इसके लिए x ऑफ ये 1 है। So what will be x of 1? आपके मुश्ताक अब आ गया। So here x of 1 will be whatever the x of 0 was plus 1, है ना? इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी वही होगा, x of जो 0 था plus 1. So that is what I'm saying. X of I plus 1 is equal to x of I plus 1. What will happen to the y? Y of I plus 1. What do you mean y of I plus 1? y of I plus 1 means जो y of I है, कि जो अभी y था, जो नेक्स्ट पिक्सल हमें लेना है y of I plus 1। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 पिक्सल्स किए, तो y इस वक्त I इस वक्त 5 है। सो y of 5 जो था, जहाँ पे हम हैं, उसके बाद जो होगा ना y of 6, how could I say y of 6? y of I plus 1, यानी कि अभी अगर मैंने पिक्सल्स बनाए 1 2 3 4 5, अब मैं 6 पे आ रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे I 5 था ना, सो y of 5 plus 1 that means 6, यानी कि इसकी बात हो रही है 6 की। So y of 6 is equal to whatever the y of 5 was plus 1 minus 1 if I take the top pixel, ठीक है ना। whatever the y of 5 was, y of 5 जो भी था उसको आप minus 1 करो। अगर आपने नीचे वाला पिक्सल लिया तब, अगर आपने ऊपर वाला पिक्सल लिया तो ये पुराना ही रहेगा। y of 6 will be whatever the y of 5 was, it will not decrement, it will stay same. So short में बोलते हैं y of I plus 1, जो next y है, that will be whatever the y of I was, either it minus 1 or it could be whatever the y of I was, only that thing, do not decrement, ठीक है ना। चलिए हम इसका एल्गोरिथम लिखेंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम आप लिखना, फिर ब्रेसन को भी सेम, उसमें सिर्फ ये dv's का वैल्यू चेंज करना, ठीक है। सो वी से मिड पॉइंट circle drawing algorithm. Step 1 में क्या करेंगे बोलेगा कोई? हम प्लॉट करेंगे पहले इनिशियल पॉइंट्स, है ना, जो इनिशियल पॉइंट हमारे होंगे वो करेंगे हम प्लॉट, है ना। सो वी से प्लॉट initial points, ठीक है, that is x of I और y of I such that, तो बताओ कोई मुझे पहला, जब हम इनिशियल पॉइंट करेंगे, यानी कि जो सर्कल मेरा होगा, यहां से हम शुरू कर रहे हैं ना बनाना, ये मेरा ओरिजिन है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं बनाना, जो ये वाला पॉइंट हम पिक्सल करेंगे ना, पहला पॉइंट ये। सो इसका x कितना होगा और इसका y कितना होगा बताओ? What will be such that x of I is equal to, and what will be y of I?
0. x of I will be 0. बाकी क्या चुनना, y of I is equal to, और अब इसके 5 लेक्चर हो गए तकरीबन इस चीज के, अब आपको आना चाहिए। तो शुने मुझे पारा बिल्कुल थी की गाड़ी उबैद अमीन, हुवैद, ताबिर, बट एंड सुहेब, ओपन अप योर कैमरास। ओके, व्हाट विल बी स्टेप 2? स्टेप 2 में क्या करेंगे हम भाई? initial decision variable. Very good, mashallah. Find initial decision variable. Very good. Find initial decision variable. सेम लिखना आप उसका भी, किसका, बरसन हम का लिखना सेम, उसमें सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। Find initial decision variable. Okay. What will be that? That is dv of, in fact we say 0, huh? That I told you this is 5 by 4 minus r, or we could say 1 minus r. Okay, because it has a floating point operation, so we don't want that, so we can use either of the two. Okay, step 3rd. So this is step 1, step 2 and step 3rd. Step 1 में हमने क्या किया, इसी का हमने प्रोग्राम भी करना है, फिर कि प्रोग्राम भी सेम ही रहेगा ना, वो सेम ही रहेगा उसका जो हमने इसमें किया, किसने, ब्रसन हम में, उसी उसमें सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। तो इनिशियल पॉइंट्स हम पहले करेंगे ड्रा। पहला पॉइंट होगा x0 yr, है ना, जो सर्कल मैं बना रहा हूँ, जो टॉप पे सर्कल बनेगा यहाँ से, ये अगर मेरा ये है तो यहाँ से पहला पॉइंट होगा ना, फिर हम आते जाएंगे ऐसे ऐसे। पहला पॉइंट तो ये है, इसका x है जो यहाँ पर है, दैट इज 0, और इसका y है, क्योंकि y में पूरा चला हूँ ऊपर जितना रेडियस है, सो y इसका रेडियस है, सो वो मैंने किया। फिर इनिशियल डिसीजन वेरिएबल निकाला। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे कंडीशन चेक करनी चाहिए, इफ dv is less than 0, then तो क्या करूंगा मैं उस सूरत में, x of I plus 1, यानी कि नेक्स्ट I, यानी कि नेक्स्ट x क्या किसके बराबर निकलेगा, whatever the x of I was plus Plus we 1. will increment it. What will happen to the y of I plus 1? It will stay same. It will stay same. If dv is less than 0, then I will choose the upper pixel. That means my y will not change. So do not decrement the y here, right? And I should also calculate what, my decision variable next. Whatever the decision variable was on I, that is this guy. I was 0 firstly. On this was the decision variable. Now next time, that is dv of I plus 1. Okay, what will be the next decision variable? Will be whatever the dv of I was, whatever the previous decision variable was, plus, can anyone tell me what was the decision variable in case of the next decision variable in case of Brassenham algorithm? बताया कोई? 2x plus 6. Huh? 4x plus 6. 4x plus 6. So here it is a little different. It is 2 whatever the x of I was plus 3. इतने 2x plus 3. 2xi plus 3, ये हमारी फॉर्मूला इसकी है बस, ठीक है, ये नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल की फॉर्मूला है। तो जहां हमने प्रोग्राम के अंदर, इसका प्रोग्राम आप खुद करेंगे और मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, ठीक है, जहां आपके प्रोग्राम के अंदर वहां पे ब्रसनहम में आपने वो फॉर्मूला लगाई थी, वहां पे आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इतनी फर्क रहेगी, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? व्हाट विल बी द स्टेप 4 नाउ, बिकॉज आई गॉट द नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। सो स्टेप 4, अगर ये डिसीजन वेरिएबल लेस देन 3 आ रहा है तो ये हमेशा यही होगा, ठीक है। अगर डिसीजन वेरिएबल क्या आया, इफ Greater than 0. decision variable is greater than 0, then what should I do? You should tell me, what is x of I plus 1? It will decrement y, it will increment x. It will increment x, same as this, okay, but y here was not changing, okay, it was no change in y stays same, but here it will decrement. So here we say y of I plus 1, that means next y will be whatever the previous y was, y of I, okay, minus 1. So that means I am decrement y, y को decrement हो गए, तो बता चुका हूं ना मैं अभी 1000 बार अब, ठीक है।
and we should also calculate what? dv of I plus 1. So what was my dv of I plus 1 in case of Bressenden algorithm? 4 minus dv of I plus 4 into x minus y. 4 into xi minus yi plus 10. यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, 2 plus 5. ठीक है, यहाँ पे इतनी फर्क है। ओके, तो ये फॉर्मूला रहेगी आपको। अगर आपका dv जो है ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन उसका मतलब है कि आप नीचे वाला पिक्सल ले रहे हो। उसका मतलब ये है कि आपको, अगर यहाँ पे आप थे और आर्क यहाँ से जा रही है, आप ये वाला पिक्सल नहीं ले रहे हो, आप ये वाला पिक्सल ले रहे हो। इस सूरत में x इंक्रीमेंट तो होता ही होता है और y डिक्रीमेंट हो रहा है ना, y डिक्रीमेंट्स x इंक्रीमेंट्स। और जो नेक्स्ट आपका dv निकलता है, वो जो पुराना dv था उसको प्लस हम करते हैं ट्वाइस x ऑफ i माइनस y ऑफ i। x ऑफ i इज जो पुराना x और y था, यानी कि इसका जो इस पॉइंट का जो x और y था, दैट इज x ऑफ i y ऑफ i, उनको माइनस करें आपस में, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें और प्लस 5 करें, और वो पुराने dv से जो इस स्टेप से पहले जो dv निकला था उससे ऐड करें, ठीक है, और फिर से चेक करें। अब स्टेप 5 क्या होगा हमारे पास? व्हाट विल बी द स्टेप 5? व्हाट विल बी स्टेप 5? उबैद अमीन, हुवैद मीर, आपका कैमरा ऑफ आ रहा है भाई। Check whether circle is completely drawn or not. पहले हमें ये करना है ना, रिपीट। Yes, sir. रिपीट दिस थिंग, ओके। सो वी से रिपीट स्टेप 3 and 4 कब तक? अंटिल, हाँ जी, जो डू वाइल की कंडीशन थी, वो लूप कब तक चलानी है? जो डू वाइल की कंडीशन थी ना, वाइल अंटिल, वही मैं कर रहा हूं, अंटिल I greater than x. becomes, शाबाश, Y greater greater than or equal, greater than or equal to y, जब तक वो हो जाएगा। We have to do one more step. Can anybody tell me what is step 6? क्योंकि हर पॉइंट के साथ आसफा बशीर से क्या शिकना होना, नहीं समीरा जाफर मुझे कुछ बोल रही है आज। समीरा जाफर, आसफा बशीर, you should tell, other students also should tell. आतेरा, माजिद, जिशान अली, फैसल, बाकी निसा, सब बोलो ना। Be part of the lecture, be part of the things. ये तो हमने पढ़ा ना सारा, अभी 4-5 लेक्चर हो गए इसके ऊपर। पहले कॉन्सेप्ट किया हमने सर्कल का, क्या होता है, कैसे करते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन की, उसके बाद प्रोग्राम किया। आज इसका ये होता है, वरना एक लेक्चर होता है। अक्सर आप कहीं भी जाओगे किसी भी कॉलेज के अंदर, वहाँ एक लेक्चर से ज्यादा नहीं देंगे एल्गोरिथम के ऊपर। यहाँ आपको 4-5 लेक्चर हो गए, तो यू शुड बी एबल टू टॉक नाउ। एक हर पॉइंट के साथ मुझे क्या करना है? To plot a complete circle, plot a complete circle, what you got to do? put pics. We should not say like this in algorithm because wait. So we should reflect now, whatever the point we got from the top, जो मेरा पिक्सल अब मिला, चाहे ये पिक्सल मिला, चाहे ये पिक्सल मिला, जो भी पिक्सल अब करेंगे हम प्लॉट, उसको रिफ्लेक्ट करके हमें काम करना चाहिए। So we should what? Say reflect. Reflect. कितने पॉइंट्स आएंगे मुझे? 7. Reflect this pixel on 7 Quadrant. other Oh. pixels in different octants. जो बाकी ऑक्टेंट्स हैं, अगर आपको ये पिक्सल मिला, अब आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। वो पढ़ा ना हमने, अब मैं फिर से वो नहीं पढ़ाऊंगा ना, कि अगर आपको एक पिक्सल है तो वो बाकी डिफरेंट पिक्सल से करेंगे यूजिंग, हम क्या करेंगे यूजिंग, शाबाश, किस हिसाब से करेंगे? यूजिंग रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बताएगा मुझे क्या है? व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन? शाबाश।
ठीक है जानी क्या सर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो पहले दिन से मैंने पढ़ा है ना इसका सर्कल का रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या है सेम क्वाड्रेंट हाँ जब हम सेम क्वाड्रेंट में तो मतलब ये इंटरचेंज हो रहे हैं, अगर हम एक्स क्वाड्रेंट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वहां पर साइन चेंज होगा और वाई क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस के ऊपर अगर अक्रॉस X एक्स axis एक्सिस रिफ्लेक्ट X करेंगे तो शाबाश चेंज हाँ होगा साइन, साइन वाई का चेंज साइन चेंज। हाँ अगर हम वाई एक्सिस के मतलब वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स का साइन चेंज होगा। असफा बशीर आप किसके साथ बात कर रही हो what are you doing you should be in a class but you're talking to some other guy I'm asking a question you're talking to some other person you should maintain the sanctity of class this is not good do you understand I'm asking you a question you other than answering my question you're talking with some other person अब आप छोटे बच्चे नहीं हो ना तो मैं आपको उंगली पकड़ूंगा बोलूंगा इधर देखो सईद बुतौरान हुवैद मीर मैंने आपसे कहा ना आपका कैमरा ऑफ आ रहा है आकिब मुश्ताक का भी कैमरा ऑफ आ रहा है okay yes if we move across the y axis what will happen ayman wani आप बताओ मुझे अगर आप सेम क्वाड्रेंट है we have a same quadrant ayman wani open your mic हाँ we have a same quadrant ठीक है and you are moving from one octant to other octant say यहाँ पे x and y था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर इंटरचेंज हो जाएंगे तो xy becomes yx वेरी गुड माशाल्लाह मुझे लगा था आप आंसर नहीं करोगे इसलिए मैंने आपको पूछा और मुझे इरादा था कि मैं आपको डांट पिलाऊंगा लेकिन आपने तो आंसर कर दिया दैट मींस यू आर अ गुड स्टूडेंट व्हाई आर यू नॉट टेकिंग पार्ट ऑफ दिस यू शुड टेक पार्ट ना यू शुड टॉक एवरीबॉडी शुड टॉक जस्ट सी दोस वीडियोस मैं तो फिर लेक्चर के भी वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब पे यस सर watch them make your concept stronger if you're not making concept stronger I'm talking to everyone not only Ayman Wani if you're not making your concept stronger you will not be able to talk simple as it is so if you come into the class without preparing it will be not good for you do you understand थोड़े से हिम्मत करो थोड़ी मेहनत करो समझ में आ रही है ये आपको समझना ना अपने आप को समझाना है क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी लेवल होती है हर एक स्टूडेंट को अपने अपने हिसाब से मेहनत करनी है अब आपको कुछ और नहीं करना है आपके जो मेरे ही लेक्चर्स हैं इनको 2-3 बार देखना है जब तक कि दिमाग में फिट हो जाएगा ठीक है फिर यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे आप ऐसे ही आ जाओगे क्लास के अंदर विदाउट प्रिपेयरिंग फिर आप जस्ट फॉर अटेंडेंस एंड ऑल यू विल कम फॉर अटेंडेंस एंड ऑल कि भाई अब शॉर्टेज निकलेगी या कुछ उससे आपका जो है ना वो आप एक स्टूडेंट नहीं बनोगे ना वो जो आप होने चाहिए आपको समझ आ रही है listen to me carefully you have to watch these videos 3-4 times so that you will be better you have a grip on it क्योंकि every day and day out you will become stronger लेकिन अगर आपने छोड़ दिया हम आगे जा रहे हैं और आपको फर्ज कीजिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है और आप आगे जा रहे हो सो आप आगे जाके सिर्फ वीक ही होना है वहां आपको कुछ समझ ही नहीं आना है you will be all the time weaker and weaker लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके आपको 1 घंटा दे दो आप पूरे दिन के अंदर 1 घंटा प्रिपरेशन का दे दो ठीक है जस्ट गिव 1 hour टू इट लेकिन ये आपको देना है जरूरी अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो सो आप रोज वीक हो जाओगे लेकिन अगर प्रिपरेशन करते हो अगर आप 1 घंटे की बजाय आधा ही घंटा देते हो लेकिन प्रिपेयर कर रहे हो एवरी डे यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर यू विल बी बेटर स्टूडेंट ईच एंड एवरी डे डू यू अंडरस्टैंड सो ईच एंड एवरीवन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इन वीडियोस को देखें आपको कुछ वरना यू आर एन एमसीए स्टूडेंट वी शुड नॉट बी दिस वाज नॉट द वे टू टीच द स्टूडेंट्स आर देमसेल्फ दे आर grown up students you have to yourself read books understand अब आपको वीडियो एग्जैक्टली है आपके पास है जो चीजें आपको चाहिए होती है आप उसको थोड़ा सा रिकैप करना है खाली ताकि दिमाग में आ जाएगा ठीक है ना बात समझ आ रही है so will everybody do it Faisal Nazir will everyone do it Yes, sir. so next time when you come into the class you come prepared and you talk do you understand so don't stay like that एक स्क्रीनशॉट लेते हैं एक एग्जांपल करेंगे हम इसकी we'll do one example of it
कि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आती है तो इसलिए उसकी एग्जाम्पल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कहाँ गया? ओके, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है भाई पहले। हिना से क्या फोन इज प्रॉब्लम? प्रिंट स्क्रीन। हिना आपके फोन में प्रॉब्लम है? योर कैमरा इज कमिंग कॉन्स्टेंटली ऑफ बट यू आर इन द क्लास और टॉकिंग एंड ऑल। हिना एडमिट, ये क्या आ रहा है फिर? कहाँ गया है पेंट? इसकी एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। पेंट क्यों नहीं दिख रहा मुझे? इसके पीछे तो नहीं है, बैकग्राउंड में आ रहा है शायद। भाई न्यू टैब कहाँ से आ गया? Control V. Okay, we got good with this. हिना फयाज को एडमिट मसला रहा है। हमारे पास टाइम कितना है? We have 4 minutes. We'll try to do this example. Okay, we come back if time goes, we come back to it. So हम क्या करेंगे काम? जो नेक्स्ट क्लास है ना, कभी क्योंकि पहले हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, जो उसका है, क्योंकि यू हैव क्लास विद दिस कासिम सर। क्योंकि इसका अभी हम एग्जाम्पल एक करेंगे, इसको हम वी टेक गिव मोर टाइम टू इट सो दैट वी अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो हमने ये कहा कि स्टेप 1 में आप x0 और y रखोगे फुल, जितना भी रेडियस होगा, तो आपको खाली यूजर को रेडियस मांगना है, ठीक है। उसके बाद आप शुरू करोगे अपना एल्गोरिथम 0x of i0, यानी कि i start from 0, so x of 0 will be 0 and y of 0 will be r, ठीक है ना। उसके बाद जो डिसीजन वेरिएबल 0 होगा दैट विल बी 1 - r हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या ये डिसीजन वेरिएबल लेस देन 0 था या ग्रेटर देन 0 था। अगर लेस देन 0 था तो x को इंक्रीमेंट करेंगे, y को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल करेंगे, जो पुराना डिसीजन वेरिएबल है उसको ऐड करेंगे ट्वाइस x + 3, जो भी इससे पहले x था उसको 2 मल्टीप्लाई करके +3 करेंगे। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे क्या डिसीजन वेरिएबल लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो थर्ड स्टेप करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फोर्थ स्टेप करेंगे, यानी कि x को भी इंक्रीमेंट करेंगे, y को भी डिक्रीमेंट करेंगे। लेकिन उस सूरत में जो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारी फॉर्मूला चेंज होगी डिसीजन वेरिएबल, नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकालने की, दैट इज ट्वाइस x - y + 5, उसको ऐड करेंगे पुराने डिसीजन वेरिएबल से, ठीक है। सो dv of i मींस जो मेरा इस वक्त का डिसीजन वेरिएबल है, जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल है दैट इज dv of i + 1, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 दिन काम करेंगे, सो मेरा i इस वक्त 0 है, सो व्हाट विल बी नेक्स्ट i + 1, दैट इज 1 सेकंड डे, फर्स्ट डे, है ना। 0 डे 1 डे। सो अब अगर मैं 1 डे पे हूं तो i 1 है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट i, दैट विल बी 2, दैट्स व्हाटएवर द i वाज + 1, ठीक है ना। सो वो फिर हम रिपीट करेंगे एंड ऑल दैट। लेट अस डू एन एग्जांपल। अगर हमारे पास रेडियस अगर हमारे पास है 10, कितना है एग्जांपल, लेट radius is equal to 10 and we will draw a circle using what? Using midpoint circle drawing algorithm, ठीक है। सो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्लॉट x is equal to 0 and y is equal to 10, क्योंकि x एल्गोरिथम देखो, जो मेरा x है वो 0 है, y कितना है? वो r है, ठीक है। सो वी x is equal to 0 and y is equal to 10, ठीक है ना। अब ये पता ही है कि ये x of 0 है, y of 0 है, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरे पता ही है x ये है, y इस वक्त ये है क्या मैंने। सो ये मेरा निकलेगा पिक्सल नंबर फर्स्ट, सो आई हैव टू प्लॉट 0 and 10, मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, क्योंकि मैं बाद में प्लॉट करूंगा पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या निकालना चाहिए साथ में? dv of 0, डिसीजन वेरिएबल निकलेगा ना। व्हाट इज दैट इक्वल टू? शो बताओ जल्दी। 1 - 10. So that is equal to 1 - 10, that is equal to -9. Okay, is decision variable less than 0 or greater than 0? Less than. So dv of 0 is less than 0. When the decision variable less than 0, should I go for step 3 or step 4? Step 3. Nishna, decision variable less than 0. Sir, Nishna, I both. Nisa, decision variable less than 0. Anjum, talk. Teacher, everybody try to talk. I will help you. I'm not
I'm not kind of trying to rebuke you or getting you down. I'm all trying to uplift all of you. ठीक है ना? With all love and affection for you in my heart. But you have to come up ना. Each and everybody has to come up. Be a lively students. वो तभी होगा जब आप प्रिपेयर करेंगे, जब इस एल्गोरिथम को आप लिखेंगे कॉपी पे, उसके बाद जहन में रखेंगे, उसका प्रोग्राम करेंगे,